پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ترقی پذیر ملکوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا۔ ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں کے مسائل سے نجات اور مالی معاونت حاصل ہونی چاہیے۔ پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق سربراہ اجلاس میں دی جانے والی یقین دہانیوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں ترقی کے لیے فائنینسنگ سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثے میں اظہار خیال۔ The Holy Quran says in Surah Yunus, verses 14, ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Thus we have made you trusty on the earth after them to see how you would act. Therefore, Islam promotes a responsibility to protect the environment, utilize and harness natural resources efficiently. ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہیں۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں کم حصے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس حوالے سے مربوط کثیر القومی لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک میں MDIMF سے ملاقات، معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے IMF کے تعاون کو سراہا۔ IMF نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری دی تھی۔ کرسٹالینا جارجیوا کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے عزم کا اظہار۔ نیو یارک میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، دفاع اور سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ ترجیحی تجارتی معاہدے اور ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی فعالیت سے معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے شریک چیئرمین بل گیٹس کی ملاقات۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے، صنفی مساوات اور بچوں کی نشو و نما سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سے پولیو وائرس کی منتقلی کی روک تھام کے لیے پرعزم ہیں، حفاظتی ٹیکے اور صحت کی دیگر ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسین کی دستیابی ہر ایک کے لیے ممکن بنانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر ویکسین کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ ترقی پذیر ملکوں کو عالمی وباؤں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا ہوں گے۔ آئندہ کسی بھی وبا سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات ناگزیر ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں وبائی امراض کی روک تھام، تیاری اور رد عمل کے موضوع پر سمٹ میں اظہار خیال۔ ہمارا بنیادی ہدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ خلیجی ممالک پاکستان کے بڑے شراکت دار ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خلیجی ملکوں سے معاہدے ہوں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا TRT ورلڈ کو خصوصی انٹرویو۔ فائنانس ڈویژن نے ایکسپریس ٹریبیون میں 20 ستمبر کو شائع ہونے والی خبر کی تردید کر دی۔ اخبار میں مالیاتی ضروریات کے حوالے سے اعداد و شمار غلط شائع کیے گئے۔ محدود معلومات پر خبروں کی تشہیر صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ نگران حکومت اہداف کے توازن اور IMF کے معاہدے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ فائنانس ڈویژن۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ چین میں ننشیا جنرل ہسپتال کا دورہ۔ صبح ننشیا کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال کے استقبالیہ، وارڈز اور شعبوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ریسٹ روم بھی دیکھے۔ وزیر اعلیٰ نے ننشیا جنرل ہسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی۔ ڈالر کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر $1.18 سستا ہو گیا۔ ڈالر $292.70 پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر $1 سستا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت خرید $293 جبکہ قیمت فروخت $296 پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز ڈالر کی قیمت خرید $294 جبکہ قیمت فروخت $297 تھی۔
सियालकोट में टैंकों की बड़ी लड़ाई। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने फैसलाकुन फतह हासिल की। पाक फौज ने फाजिलका सेक्टर में दुश्मन के 11 और सियालकोट के महाज पर 6 टैंक तबाह कर दिए। सरगोदा में भारतीय जंगी तैयारा कैंपरा और लाहौर में हंटर मार गिराया गया। सदर अयूब ने बेहतरीन जंगी कारकर्दगी पर फौजी अफसरों को अवार्ड से नवाजा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है, जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही ताहिर अब्बास बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जो 22 अगस्त 2023 को बन्नू के इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिपाही ताहिर अब्बास की शहादत पर फख्र है। लवाहिकीन। हरदीप सिंह का कत्ल माशी मफादात या उसूल की हिमायत। कनाडा भारत तनाज़े पर मगरबी ममालिक कशमकश का शिकार। मगरबी दुनिया में तकसीम पैदा होने का कवी इम्कान। अमरीका, बरतानिया और दीगर अहम मगरबी ममालिक माशी मफादात की हिमायत करेंगे या उसूलों के हिमायती बनकर सामने आएंगे? सवालात उठने लगे। मोदी सरकार का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। भारत के आइन की तमहीद से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार ने भारत के नाम नेहाद सेक्युलरिज्म का रहा सहा लिबादा भी उतार फेंका। आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। ऑपोजिशन लीडर अधीर राजन चौधरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी अमन इस्तेहकाम में नुमाया किरदार। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में मरकजी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने आला सतह पर अमन की बहाली की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग ची की मॉस्को में मुलाकात। आलमी तरक्की और माशी इंसाफ के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेंगे। हम ब्लॉक की सियासत और मखसूस मफादात के लिए किसी भी मुल्क की बालादस्ती के खिलाफ हैं। मगरबी ममालिक की तरफ से लगाई जाने वाली एक तरफा पाबंदियों के असरात पर काबू पा लिया। अब मईशत की बहाली का अमल जारी है। व्लादिमीर पुतिन। मलका तरन्नुम नूर जहां की 96वीं सालगिरह। मौसीकी की दुनिया में अजीम गुलकारा की मधुर आवाज़ का जादू 6 दहाइयों तक सर चढ़कर बोलता रहा। 65 के जंग में कौम के बहादुर सपूतों के जज्बे को मिली नगमों से गरमाए रखा। तमगाए हुस्न कारकर्दगी और तमगाए इम्तियाज समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स हासिल किए। उर्दू के अजीम शायर मीर तक़ी मीर की 213वीं बरसी। मीर अपने अंदाज़े बयां और अशआर में मुनफरिद फ़ज़ा पैदा करने की सलाहियत रखते थे। 2 सदियां गुजरने के बावजूद उनकी शायरी का सहर आज भी कायम है। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नायला कयानी का एक और एजाज। नेपाल में वाक़ दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी मनासलो पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। नायला कयानी 8163 मीटर बुलंद माउंट मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नायला कयानी को 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 9 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज भी हासिल है। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम उमरकोट और हैदराबाद गैरिसन में यौम दिफा ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट। हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में हैदराबाद ने मुटियारी को हरा दिया। मीरपुर खास में खेले गए क्वार्टर फाइनल में हबीब 11 टंडोला यार ने FC उमरकोट को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, आपको बताते चले, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए तरक्की पसीर मुल्कों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा। तरक्की पसीर मुल्कों को कर्ज़ों के मसाइल से निजात और माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में तरक्की के लिए फाइनेंसिंग से मुतालिक आला सतह मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक सरबराह इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। असद यार खान की रिपोर्ट। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पायदार तरक्याती अहदाफ के असूल में निजी शोबे की सरमायाकारी की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को उन वजूहात का जायजा लेना होगा जिसकी वजह से तरक्की पजीर मुल्कों में निजी सरमायाकारी नहीं हो पा रही। वजीर आज़म ने कहा कि उसकी एक वजह तरक्की पजीर मुल्कों की इस्तेदाद में कमी और कमज़ोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स का निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। An investment proportion entity could be established under the UN's umbrella as a public-private partnership to one, create and enlarge the capacity of developing countries to identify the proposed SDG-related bankable projects, develop a template for national and international regulatory frameworks to incentivize private investment, develop measures to de-risk such SDG-related investment through green bonds, blended finance, sovereign guarantees, insurance schemes, and first loss mechanisms. Negotiate a revised method for calculating risk with credit rating agencies to lower the cost of capital and connect all the stakeholders on one platform. वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हवाले से होने वाले सरबराह इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद होना चाहिए। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने क्लाइमेट एम्बिशन के समिट से खिताब में कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत 14 का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत दी गई है। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी आने वाली नस्लों को महफूज माहौल देने के लिए अभी से मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए इस्लामी तालीमात और रहनुमाई को अपनाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई हैं, जिनसे दुनिया भर में खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आलमी बरादरी को इस हवाले से मरबूत कसीरुल कौमी लाहे अमल वज़ा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील अरसलान असद से। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, तहम माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान का शुमार सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने के लिए कई अहम इक़दामात पर अमल पैरा है। Disaster risk management is a cross-cutting priority in our National Adaptation Plan. Within the last year, we have undertaken significant steps in enhancing Pakistan's early warning capacity, including by updating our National Flood Protection Plan. Although Pakistan has not contributed to the problem of global warming, we have chosen to be a part of the solution. Pakistan seeks to produce 60% of its energy from renewable sources by 2030. This energy transition will cost over $100 billion and will require international support. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी सरबराह इजलास में कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी आने वाली नस्लों को महफूज माहौल देने के लिए अभी से मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। To achieve the climate goals, all of us, rich and poor, north and south, must therefore raise our ambition. Yet climate justice also entails providing developing countries like Pakistan with the financial and technological means to realize these higher ambitions. निगरान वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान का जायजा लेने और आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। असलान सदकिट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए IMF की जानिब से $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने MD-IMF को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की मईशत के लिए इस्तेहकाम और बहाली के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन इक़दामात का मकसद पायदार इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के लिए एक मुस्तहकम और साजगार माहौल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि माशरे के कमज़ोर तबकों की हिफाजत पर भरपूर तवज्जो दी गई है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मईशत की बहाली के लिए पॉलिसियों और इस्लाहात के नफाज में पाकिस्तान की ठोस कोशिशों को सराहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि IMF पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा के शोबों और रवाबित के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ शोबों के ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव के दरमियान न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में तय पाया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इस रफ्तार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तरजीही तजारती मुआहदे और ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की फ़ालियत से इलाकाई तजारत और राबतों को मज़ीद वुसअत मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई राबतों के फ़रोग़ और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान की जानिब से ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाकाई राबतों, तजारत और माशी ताउन से अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में हालिया तब्दीलियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रवां साल मुल्क के हर इलाके में पोलियो वायरस की मुंतकली को रोकना मुमकिन होगा। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर मुलाकात में कही। मुलाकात में पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर भी तबादला ख़याल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन, मामूल के हिफाजती टीकों और दीगर ज़रूरी सेहत की खिदमात पहुँचाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बिल गेट्स ने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा वलीन तरजीह है। उन्होंने ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पार मुंतकली को रोकने और जनूबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और निगरान हुकूमत पर भी एतमाद का इजहार किया और कहा कि वो पोलियो वायरस की मुंतकली के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स ने इस बात पर भी तबादला ख़याल किया कि तरजीही इक़दामात के नतीजे में ख़वातीन की सेहत और माली खुद मुख्तारी से उनके मुस्तक़बिल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कोरोना से निमटने के दौरान आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैये पर मबनी गलतियों को दोहराने के बजाय किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत माली और कानूनी इक़दामात करना होंगे। न्यूयॉर्क में क्लाइमेट मिशन समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर वबाओं से निमटने के लिए $30 अरब के फ़ंड के क़याम की तजवीज़ दी। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर होने वाली समिट से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान एक छोटे से वायरस की वजह से लाखों लोगों की जानें ज़ाया हुई और आलमी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से साइंसदान कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए वैक्सीन पाने में कामयाब रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम के निज़ाम में तरक्की याफ्ता मुल्कों और बड़ी कसीरुल कौमी कंपनियों की जानिब से गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया गया। There are several reasons for concern and dismay. First, the inequity in the distribution of the vaccine, with rich countries hoarding the vaccine without concern for the poor. Second, the resistance by corporate interest, supported by their host governments, to allow the wider and enhanced production of the vaccine by asserting their intellectual property rights. Third, the inequality in financial support mobilized by the rich and poor countries to recover from the pandemic. And last, even in the face of this common danger to mankind, some major powers could not resist the strategic temptation to point fingers at their advisory. निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बड़ी कमर्शियल कंपनियों को वबाई अमराज के इलाज की अद्वियात की तकसीम का इख्तियार नहीं देना चाहिए। इस तरह के मामलात
عالمی ادارہ صحت کے تحت کثیر الملکی بنیاد پر چلانے چاہیے۔ نگران وزیر اعظم نے اس موقع پر کسی بھی عالمی وبا کی ناگہانی طبی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر $30 ارب کے فنڈ کے قیام کی تجویز دی۔ Financing effective national, regional, and global health emergency preparedness will require approximately US $30 billion per year, including an estimated gap of $10 billion in new external financing per year outside current official development assistance levels. This should be provided from all sources, including allocation of SDRs or the recapitalization of multilateral, regional or national development banks. انوار الحق کاکڑ نے مستقبل میں عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے قانونی معاہدے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تک نہیں پہنچ رہی جی۔ نگراں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اور ابھی کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ ہمارا بنیادی ہدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کو خصوصی انٹرویو میں جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ملک میں اضافہ ہوا۔ خلیجی ممالک پاکستان کے بڑے شراکت دار ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ India has violated most of the UN Security Council resolutions, including the UN Security Council resolution on Jammu and Kashmir, which is the long-standing issue on the UN Security Council agenda. We would like the implementation of those UN Security Council resolutions, calling for holding of a free and fair plebiscite to determine the wishes of the Kashmiri people. So that is something which has not taken place. And Kashmir, as you are aware, for the last several years has been turned into a prison. So that is something, and massive human rights violations are taking place. So this is something that we would expect the international community to take notice of. نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمسایہ ممالک سے دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان کالعدم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں زراعت اور ریلوے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی نیو یارک میں مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور مصر کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چین میں نینشیا جنرل ہسپتال کا دورہ کیا اور استقبالیہ وارڈز کے شعبوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ریسٹ روم، بلڈ سیمپل کلیکشن سینٹر روم، میڈیکل سٹور اور ایمرجنسی وارڈ کا بھی جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے جدید ترین طبی آلات سے آراستہ ایمبولینس گاڑیوں کا بھی مشاہدہ کیا اور نینشیا جنرل ہسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاج معالجے کے لیے موجود جدید مشینری اور آلات بھی دیکھے۔ نینشیا جنرل ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہسپتال کا مینجمنٹ سسٹم لائق تحسین اور قابل تقلید ہے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اسی طرز پر سہولیات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہسپتال کی حالت بہتر بنانے کے لیے نینشیا حکومت کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ناظرین، ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن، ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔
आज भी इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये और 18 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 292 रुपये और 70 पैसे पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 293 रुपये और 88 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 293 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 296 रुपये पर पहुँच गई है। ओपन मार्केट में गुज़श्ता रोज़ डॉलर की कीमत खरीद 294 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 297 रुपये थी। माहिरीन का कहना है कि करेंसी ज़ख़ीरा और स्मगल करने वालों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। क्रैकडाउन शुरू होने से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 32 रुपये जबकि इंटर बैंक में डॉलर 14 रुपये तक कम हुआ है। और मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी ने लाल हवेली को सील कर दिया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक रावलपिंडी आसिफ खान और FIA अमले के हमरा लाल हवेली पहुंचे और अमारत को सील किया। लाल हवेली और इससे मुल्हिका 7 एराजी यूनिट्स के हवाले से चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ फैसला जारी किया। लाल हवेली, बोहड़ बाजार और राजा बाजार में मतरूका वक्फ इमलाक की जायदाद तहवील में लेने के लिए ऑपरेशन किया गया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं, जो लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन रिकवरी 6 अरब तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान बिजली चोरों और नादहिंदगान से 5 अरब रुपए वसूल किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अब तक 1500 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के ज़ैली कल्चर की तब्दीली तक कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अच्छे शहरियों को मुजरिमों के गुनाहों की सज़ा नहीं दी जा सकती। और लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 15वें दिन 439 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके खिलाफ FIRs की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। 239 FIR में 30 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम कनेक्शन मुनक़ते करके उनको यूनिट्स डिक्टेशन बिल की मद में चार्ज किए गए। लेस्को रीजन में 15 रोज़ के ऑपरेशन के दौरान 411 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरों पर अब तक 62 करोड़ 39,26,586 रुपए के जुर्माने किए गए। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लेस्को सर्कल ओकाड़ा में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 649 सार्फिन से बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिन्हें 11,94,496 यूनिट्स चार्ज किए गए। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। लेस्को सर्कल 4 ओकाड़ा की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला आज भी जारी रहा। लेस्को ओकाड़ा की हदूद में ऑपरेशन के दौरान 649 बिजली चोरी के कनेक्शन पकड़े गए, जिनमें ज़रई 10, कमर्शल 9, सनती 1 और 629 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। इन तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 5 करोड़ 42 लाख 69,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सख्त से सख्त इसकी सज़ा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये इस चीज़ से बाज रहें कि ये बिजली चोरी एक बहुत बड़ा जुर्म है और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये क्रैकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा। इससे कौमी ख़जाने पे जो वापडा का बोझ उसमें कमी आएगी। 622 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs भी मुतलका थानों में दर्ज की गई हैं, जिसके नतीजे में 29 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। हमने 100 के करीब पर्चे रजिस्टर्ड करा दिए हैं, तो डेली बेसिस पे 10-15 लोग इस जुमरे में पकड़े जा रहे हैं, तो डिटेक्शन और FIRs डे बाई डे बढ़ रही है। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया गया है और अब तक लेस्को उकाड़ा में 844 नादहिंदगान से 12.51 मिलियन रुपए वसूल किए गए हैं। मजमूई तौर पर जिला भर में 649 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, जबकि बकिया बिजली चोर भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला। लेस्को सर्कल ननकाना साहब ने बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान मजीद 33 बिजली चोर पकड़कर उनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। खुसूसी टीमों ने बिजली चोरी करने वाले 42 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए, जबकि बिजली चोरों को 40,198 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल भी डाल दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बिजली चोरों को 10,66,595 रुपये जुर्माना किया गया और वापडा नादहिंदगान से 12,14,167 रुपये के बकाया जात भी वसूल किए गए।
जनूबी पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के 14वें रोज मजीद 182 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद बिजली चोरों की मजमूई तादाद 9,999 हो गई है। अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 3,462 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस के हमला जारी ऑपरेशन में 249 बिजली चोर सलाखों के पीछे डाल दिए गए। बिजली चोरों को आयद करदा जुर्माने की मजमूई रकम 26 करोड़ 36 लाख रुपए है। मुहिम में 43,628 नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में वसूलियाँ 73 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई हैं। सबसे ज़्यादा वसूलियाँ 38,164 घरेलू सार्फिन से की गई हैं। उधर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बिलों की अदम अदायगी पर 8 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए हैं। ऑपरेशन के दौरान नादहिंदगान से 8 लाख रुपए भी वसूल किए गए। कैस्को लॉरलाई सर्कल में रोब मुस्लिम बाग कला सैफुल्ला में कार्रवाई के दौरान 56 बड़े नादहिंदगान से बकाया जात कीमत में 86,37,000 रुपए वसूल किए गए। इस दौरान मजीद 46 नादहिंदगान से कनेक्शन अदम अदायगी पर मुनक़ते, जबकि 3.5 लाख रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए गए। सिब्बी, डेरा लायार, डेरा मुराद जमाली में बिलों की अदम अदायगी पर 56 कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ कैस्को खुसदार सर्कल में भी कार्रवाई अमल में लाई गई। हेस्को रीजन के तमाम अजला से बिजली चोरों और नादहिंदा सार्फिन से 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद के वाजबात की रिकवरी की गई है। बिजली चोरों के खिलाफ 310 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अब तक 427 ट्रांसफार्मर्स कब्जे में ले लिए गए हैं। हैदराबाद सर्कल से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक 60 ट्रांसफार्मर्स कब्जे में लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी के खात्मे तक बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैपको का भी रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गैपको की टीमों ने कामयाब कार्रवाइयां करके मजीद 54 बिजली चोर पकड़ लिए और कनेक्शन मुनक़ते करके 19,11,000 से ज़ायद यूनिट्स की मद में तकरीबन 6 करोड़ 31 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहम्मद अयूब ने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्वस पाए जाने वाले 45 ज़रई कनेक्शंस, 28 कमर्शियल, 7 इंडस्ट्रियल और 682 डोमेस्टिक शामिल हैं। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरखास्तें दे दी गईं। 31 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। वजारत खजाना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कल के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के हवाले से तदीदी बयान जारी करते हुए वजाहत की है कि बैरूनी अदायगियों के हवाले से गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। मजमून में सूद की अदायगी के हवाले से भी गलत आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। वजारत खजाना की जानिब से जारी वजाहती बयान के मुताबिक बजट के तमाम आदाद-ओ-शुमार IMF के साथ शेयर किए गए हैं। हुकूमती मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए संजीदा हैं। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना तमाम वजारतों और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल राबते में है। वजारत खजाना के मुताबिक मजमून लिखने वाले कॉलम नगार ने सूद की अदायगियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और ऐसे लग रहा है कि मजमून नगार मालियाती पॉलिसी से मुतालिक कम इल्म है। वजारत खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। और 21 सितंबर 1965 को सियालकोट में टैंकों की बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान ने फैसला कुन फतह हासिल की। पाकिस्तानी फौज ने सियालकोट हुसैनीवाला सेक्टर में अहम कामयाबियां हासिल की। सियालकोट के महाज पर 6 टैंक जबकि फाजिल का सेक्टर में 11 टैंक, 3 एंटी टैंक गन को तबाह किया। इसके साथ 6 मशीन गन और बहुत सा गोला बारूद कब्जे में लिया। राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज ने दाह में पेशकदमी करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानी फौज ने उन्हें मार भगाया और दुश्मन के बहुत से जंगी साजो सामान समेत कुछ इलाका भी अपने कब्जे में ले लिया। पाक फजाइया ने सरगोधा में भारतीय जंगी तैयारा कैंद्रा और लाहौर में एक हंटर मार गिराया। पाक फजाइया ने भारतीय इलाकों आदमपुर, हलवाड़ा और जोधपुर के हवाई अड्डों और तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भी भारतीय भिजारियत का मुकाबला करने और अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत में पूरी तरह चौकस रही। सदर अयूब ने बेहतरीन जंगी कारकर्दगी पर मेजर जनरल इब्रार हुसैन, ब्रिगेडियर अब्दुल्ला और ब्रिगेडियर अमजद अली को बहादुरी के दूसरे बड़े अवार्ड समेत जुर्रत के 42 अवार्ड दिए, जबकि स्क्वाड्रन लीडर खान नैब अहमद को सितारा जुर्रत से नवाजा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही ताहिर अब्बास बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगा लिया। 22 अगस्त 2023 को बन्नू के इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। सिपाही ताहिर अब्बास के अहले खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें ताहिर अब्बास की शहादत पर फख्र है। मई को वाक़या हुआ, ये हमारे दिल दुखे हैं। जो शहीदों की तस्वीरें जली थी,
अभी हुकूमत को ये हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा छोटा बेटा मेरा बचड़ा मैं को बहुत फखर है, मेरा शहीद बचड़ा, पाकिस्तान का शहीद बचड़ा। बहुत खुश हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ। उन्होंने वतन के लिए जान दी, बहुत बड़ा ऊंचा रुतबा पाया है। मेरे प्यार और मोहब्बत को छोड़कर वतन के प्यार और मोहब्बत को तरजीह देकर वतन के लिए कुर्बानी दी। मैंने उसे ऐसे पाला जैसे माँ बच्चे को पालती है। जो भी मैं बात उसे कहती थी वो मेरी बात फौरन मान लेते थे। जब बड़े थे तो मेरी बहुत देखभाल करते थे, मुझे माँ जैसा समझते थे। तो जब मुझे पता चला कि आपके भाई शहीद हो गए हैं तो मेरे तो हाथ पाँव पता नहीं चला मुझे क्या कुछ हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, जब मैं मोहल्ले में जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि ये शहीद की बहन आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 21 सितंबर को अमन का आलमी दिन मनाया जाता है, जो अमन को बरकरार रखने, इंसानी मसाइब के ख़ात्मे, जंगों और अंदरूनी तनाज़ात से मुसल्लह ममालिक में देर पा अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। गुज़श्ता 75 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती के लिए अनगिनत कीमती जानें बचाईं। पाकिस्तान का भी बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेहकाम में नुमायां किरदार है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे इलाक़ों में जहाँ अमन की ज़रूरत थी वहाँ पर पाक फ़ौज ने अपनी पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दी। 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजियों ने दुनिया के 29 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के 46 मिशंस में खिदमात अंजाम दी हैं। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने आला सतह पर अमन की बहाली की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा किया है, जो मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में अमन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का उन्वान है अमन के लिए एक्शन। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अहमद खान। हर साल दुनिया भर में 21 सितंबर को यौम अमन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अमन के लिए कोशिश करना है। 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के जरिए इस दिन को मनाने की मंजूरी दी गई। जंगों, तनाज़ात और खाना जंगी ने जहाँ गुर्बत, भूख और अफलास को जन्म दिया है, वहीं मौसमियाती तब्दीली ने चारों तरफ से अफरा तफरी बर्पा की है। यहाँ तक के पुरअमन ममालिक भी अदम मसावात और सियासी अदम इस्तेहकाम की लपेट में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि अमन की अहमियत और उसकी जो ज़रूरत है इस वक्त दुनिया को, उसकी अहमियत से आगाही दी जा सके। ख़ास तौर पर हम जो जनूबी एशियाई ख़त्ते के अंदर हम रहते हैं और जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा जो तनाज़ा है वो हमारा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। और कश्मीर के हवाले से आप देखें कि दुनिया की तमाम कौमों को जिस तरह से हक़ ख़ुद इरादियत का हक़ हासिल है, कश्मीरी अवाम के लिए भी ये होना चाहिए कि उनको भी हक़ ख़ुद इरादियत के तहत आज़ादी दी जाए। पायदार अमन के हुसूल के लिए हम सब को मिलकर कोशिश करना होगी, जिसमें हमें खौफ और तशद्दुद का खात्मा, इंसाफ पसंद और तरक्की याफ्ता माशरों के दरमियान बाहिमी राब्ता पैदा करना है। आलमी अमन के लिए जरूरी है कि अदम मसावात का खात्मा हो, मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात और इंसानी हकूक़ का फ़रोग़ और उनका तहफ़्फ़ुज़ अहम सतून है, जिससे न सिर्फ एक पायदार अमन कायम होगा बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियादें मज़ीद मुस्तहकम होंगी। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। मोदी सरकार ने भारत के नाम नेहाद सेक्युलरिज्म का रहा सहा लिबादा भी उतार फेंका है। नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में अराकीन को फराहम करदा आइन की तमहीद किताब से सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब हैं। इस हवाले से अपोजिशन लीडर अधीर अर्जुन चौधरी का कहना है कि आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय आइन के दिबाचे में भारत को सोशलिस्ट और सेक्युलर रियासत करार दिया गया है। भारत की बढ़ती हुई माशी ताकत के पेश नज़र इस वक्त दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि अमरीका, बरतानिया समेत दीगर अहम मगरबी ममालिक माशी मफादात की हिमायत करेंगे या उसूल के हिमायती बनकर सामने आएंगे। मगरबी ममालिक के वज़रा हुक्काम हर मुमकिन इक़दाम करेंगे कि कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाज़ात दूसरे ममालिक के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को ख़राब न करे। भारत में मुनक्किद होने वाले हालिया G20 इजलास में भी मगरबी ममालिक ने यूक्रेन तनाज़े के बयान पर किसी किस्म के तनाज़े से गुरेज करते हुए भारत के साथ अपने ताल्लुकात को
बचाने का इंतखाब किया। इस हवाले से कनाडा की वजारत खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह मामला अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के साथ भी उठाया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका को कत्ल के इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा जेम्स क्लेयरले ने कहा कि बरतानिया कनाडा की तरफ से उठाए गए संगीन खदशात को गौर से सुनेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कैमरा इन इल्ज़ामात से सख्त फिक्रमंद है। फिलहाल मगरबी ममालिक को इस बात का इंतजार है कि कनाडा में तफ्तीश किस नौयत में आगे बढ़ती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलूच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि कनाडा में मावराए अदालत कत्ल से जाहिर होता है कि भारतीय दहशतगर्दी कनाडा तक पहुंच चुकी है। भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी के कनाडा में कत्ल से भारतीय कत्लेआम का दायरा दुनिया में फैल गया है। कनाडा की सरजमीन पर भारत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुदमुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कई दहाइयों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म रही है। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। पाकिस्तान में मुकीम सिख बिरादरी ने भी कनाडा में गुरुद्वारा के सामने सिख रहनुमा सरदार हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय खुफिया इदारों के मुलविस होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। इस हवाले से सिख रहनुमा सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि सरदार हरदीप सिंह को गुरुद्वारे के सामने कत्ल करना काबिल मजम्मत है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर इस कत्ल में भारतीय खुफिया इदारों के मुलविस होने का ऐलान करके भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारत मुलव्वस है, जिसके पाकिस्तानी इदारों के पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि सफारतकारों के रूप में भारतीय खुफिया एजेंटों के हाथों कनाडा में सिख शहरी हरदीप सिंह नजर के वहिमाना कत्ल ने मोदी हुकूमत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, सलीम जरगर, यास्मीन राजा और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान आलमी बरादरी के लिए हैरानी का बायस हो सकता है, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत में बसने वाली अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और सिखों के लिए नहीं, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान भी रोज़े अव्वल से भारत में हिंदू कुव्वतों के खुले और छुपे हमलों का शिकार रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों और सिखों के कातिल फिस्ताई हुक्मरानों को इंसाफ के कटहरे मिलाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान मसला कश्मीर को उजागर करने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को सराहा है। उन्होंने कहा कि तनाज़े कश्मीर के हल के लिए तुर्की की मुसलसल हिमायत कश्मीरियों के लिए हौसला अफजाई का बाइस है। कश्मीरी नुमाइंदा डॉक्टर शगुफ्ता अशरफ ने जिनीवा में ख़वातीन के माशी, समाजी, सकाफती और सियासी हुकूक के 15वें बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को बदतरीन भारतीय मज़ालिम का सामना है। आज़रबाईजान और आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है। आज़रबाईजान ने नगोर्नो काराबाख में फौजी ऑपरेशन रोक दिया है। अलहदगी पसंदों ने फौजी चौकियों को खाली करने और गैर मुसल्लह होने पर भी इत्तेफाक कर लिया है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा के मुताबिक अलहदगी पसंदों की जानिब से हथियार और भारी सामान आज़रबाईजान की फ़ौज के हवाले किया जा रहा है। अलहदगी पसंदों का कहना है कि एक दिन की लड़ाई में 200 अफराद हलाक और 400 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 10 शहरी भी शामिल हैं। आज़रबाईजान ने इन हलाकतों की तस्दीक नहीं की। नगोर्नो काराबाख को बाज़ाब्ता तौर पर आज़रबाईजान के सपोर्ट करने के खिलाफ आर्मीनिया के दारुल हुकूमत पर मुजाहरे भी हुए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम ब्लॉक की सियासत और मखसूस मफादात के लिए किसी भी मुल्क की बालादस्ती के खिलाफ हैं। आलमी तरक्की और माशी इंसाफ के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने ये बात मॉस्को में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी से गुफ्तगू करते हुए कही। सदर पुतिन ने कहा कि मार्च में चीनी सदर के दौरे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा मुआहिदों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। रूसी सदर ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आइंदा माह चीन का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस ने मग़रिबी ममालिक की तरफ से लगाई जाने वाली एक तरफ़ा पाबंदियों के असरात पर काबू पा लिया है और अब मईशत की बहाली का अमल जारी है।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ ویژن 2030 کے اہداف کو تیزی سے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور جلد مضبوط معیشت کے طور پر دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سعودی ولی عہد نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے اہم ہے، فلسطینیوں کی مشکلات میں کمی کے خواہاں ہیں۔ محمد بن سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول میں پہل کی تو سعودی عرب بھی سیکیورٹی اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا۔ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں کہ ایران کو جوہری مراکز کے معائنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائن پر پریس کانفرنس سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ قابل اعتماد معائنہ کار ایران میں کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایران نے کچھ روز قبل اقوام متحدہ کے ادارے ایجنسی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے 8 معائنہ کاروں کی ایکریڈیشن ختم کر دی تھی۔ ان تمام معائنہ کاروں کا تعلق جرمنی اور فرانس سے تھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے موسیقی کے افق پر پوری آب و تاب سے چمکنے والی نور جہاں کے مداح آج ان کی 96ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی نمائندہ وردہ سلیم نے عظیم گلوکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سر اور لے کی ملکہ ترنم نور جہاں موسیقی کا ایک ایسا روشن باپ ہے جس کا شاید ہی کوئی ثانی ہو، ایک ایسی مدھر آواز جسے موت بھی خاموش نہ کر سکی اور آج بھی موسیقی کے شائقین کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ 21 ستمبر 1926 کو بابا بلے شاہ کی دھرتی قصور میں آنکھ کھولنے والی اللہ وسائی کو قدرت نے ایسی خوبصورت آواز عطا کی کہ وہ جہان موسیقی کی نور جہاں کہلائیں۔ انہوں نے فنی کیریئر کا آغاز پس پردہ موسیقی سے کیا، جلد ہی یہ آواز پس پردہ سے سکرین پر جلوہ گر ہوئی اور فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے لگ گئیں۔ جذبات اور احساسات کو سروں کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے ادا کرنا ملکہ ترنم کا خاصہ تھا۔ الفاظ ان کی آواز سے ادا ہوتے تو جیسے دل میں گھر کر جاتے۔ ان کا ہر گیت انمول ٹھہرا۔ جہاں وہ فلم ہے جس میں انہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری کے بھی جوہر دکھائے اور شہرت کے باہمی عروج تک پہنچی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ملکہ ترنم نے بہادر سپوتوں کے جذبے جمع رکھنے کے لیے جو نغمے گائے وہ آج بھی ہمارا اثاثہ ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ امتیاز اور کئی دوسرے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوں تو نور جہاں کو لاتعداد ایوارڈ سے نوازا گیا، مگر اصل اعزاز ان کا مداحوں کا پیار ہے جن کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ لفظ و معنی کے جادوگر، اردو کے شاعر بے مثال میر تقی میر اپنے انداز بیاں اور اشعار میں ایک خاص صوتی فضا پیدا کرنے کی منفرد صلاحیت رکھتے تھے۔ اردو شاعری کے سرخشندہ ستارے کی آج 213ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ برِ صغیر پاک و ہند میں کئی لوگوں نے اردو زبان میں شاعری کی اور اپنا لوہا منوایا، لیکن شاعری کی دنیا میں میر تقی میر کی اپنی منفرد پہچان اور انداز ہے۔ 28 مئی 1723 کو بھارت کے شہر آگرہ میں پیدا ہونے والے خانوادہ تصوف و سلوک کے چشم چراغ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد اور تخلص میر تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ رہی اور ان کی وفات کے بعد اپنے والد کے دوست اور منہ بولے چچا سید امان اللہ کی زیر تربیت رہے، جن کا انتقال بھی میر کے بچپن ہی میں ہو گیا۔ کم سنی ہی میں والد کے انتقال کے بعد میر کی زندگی رنج و الم اور تکالیف و مصائب کی تصویر بن کر رہ گئی۔ انہوں نے شاعری کو اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور محض 11 برس کی عمر میں شعر کہنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں رنج و غم کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ ویسے تو میر نے ہر صنف سخن پر طب آزمائی کی ہے، جیسے کہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، نظم اور دیگر اصناف سخن،
लेकिन उनका असल मैदान गज़ल है जिसने उन्हें शोहरत दवाम बख्शी और वो खुदाए सुखन कहलाए। मीर तकी मीर ने 7 शेरी मजमूए तसनीफ़ किए जिनमें नुकात-उश-शोरा, कुलियात मीर, ज़िक्र मीर और फैज़ मीर शामिल हैं। मीर को अपनी फसाहत व बलागत और रीख्ते पर उबूर की वजह से अदबी हलकों में ख़ास मुकाम हासिल है और उनका शुमार असातिज़ा में किया जाता है। उर्दू और फ़ारसी ज़बान के बुलंद पाया शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब भी मीर की शायराना सलाहियतों के एतराफ़ में कहते हैं कि रीख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। बिलाखिर 21 सितंबर 1810 को 87 बरस की उम्र में उर्दू शायरी की दुनिया का ये आफताब आलमताब भारत के शहर लखनऊ में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद को नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद कायम मकाम वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये तैनाती चेयरमैन आला तालीमी कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने 4 साल के लिए की है। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात में गुज़श्ता 25 बरस से तालीमी, तदरीसी और तहकीकी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मुल्तान डिवीजन में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन भरपूर तरीके से जारी है। एक रोज़ में महकमा माहौलियात ने 35 भट्टों का मुआयना किया जिनमें से 2 को नोटिस जारी किए गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात महर शमशाद के मुताबिक 2 भट्टों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा 4 भट्टे सरबमहर कर दिए गए हैं और 7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। क्रैकडाउन में फसलों की बाक़ियात जलाने पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए और 15,000 रुपए जुर्माना किया गया। इस दौरान 113 गाड़ियों का मुआयना करते हुए 27 का चालान किया गया और 2,14,000 रुपए जुर्माना किया गया। पंजाब भर में 107 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 36, रावलपिंडी में 32, मुल्तान 17, फैसलाबाद 4, गुजरावाला में 6, शेखपुरा झंग में 2, जबकि मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह और गुजरात में डेंगू का 1 नया मरीज सामने आया है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 111 मरीज ज़ेर इलाज हैं। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान ज़ेरीन सिंध, मशरक़ी पंजाब, खित्ते पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेरीन सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला में 41, कराची 37, लाहौर 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।